ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान। पेशावर, जब से मैं जानता हूं, शुक्रिया शुक्रिया। पेशावर, सुने 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 जी। पेशावर खामोशी। अमेरिका की इंपोर्टेड गवर्नमेंट ये कौम तस्लीम कर लेगी। इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पे निकल के बताया है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। मेरे पाकिस्तानियों, आज हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया है। पेशावर के लोगों और जो भी पाकिस्तानी आज टीवी पे ये देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानियों, हमने आज फैसला करना है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं। क्या हम अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करने आए हैं या हकीकी आजादी करने आए हैं। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, हम किसी बेगैरत हुकूमत को नहीं मानते। हम इस मुल्क में जो बाहर से जो हुकूमत मुलव्वस की गई, ये सारे जमानत पे लोग हैं। शहबाज शरीफ इसका बेटा जमानत पे, नवाज शरीफ मुजरिम, इसका बेटा मफरूर लंदन में, दामाद मफरूर, नवाज शरीफ के बेटे मफरूर, नवाज शरीफ की बेटी जमानत पे। क्या मेरे पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क की, ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। क्या ये कौम इसको कभी कबूल करेगी? ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी। और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, अपनी अवाम को, अपनी गैरतमंद अवाम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। मैं कराची आ रहा हूं इस हफ्ते को और लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जुमेरात आ रहा हूं, और मैं इन सारों को आज चैलेंज करता हूं कि जो आप अवाम को अब निकलता देखेंगे, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह अवाम सड़कों पे नहीं निकली जो इंशाल्लाह मैं सड़कों पे निकालूंगा।
اگر کسی کا خیال ہے کہ شہباز شریف اس کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں، 4,000 کروڑ روپے کے کرپشن کے کیسز اس کے اوپر ہیں، کیا ہم مانیں گے اس کو اپنا وزیر اعظم؟ اور جو بھی سمجھتا ہے کہ ہم ان چوروں کو قبول کریں گے اس ملک پہ حکومت کرنے کے لیے، سب کان کھول کے سن لو کہ یہ وہ پاکستان نہیں، یہ وہ 1970 کا پاکستان نہیں جب امریکنوں نے سازش کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا تھا اور ان چوروں نے، میر جعفروں نے اس کو بھگوائی تھی۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ آج ایک نیا پاکستان ہے، باشعور لوگوں کا پاکستان ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے۔ 6 کروڑ پاکستان میں موبائل فون ہیں، سمارٹ فون ہیں، 6 کروڑ۔ یہ سارے ہمارے نوجوان، ان کی آواز ہو گئی ہے موبائل فون میں، ان کے منہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ شہباز شریف، یہ جو تم کارروائی کر رہے ہو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کی، سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہو، کان کھول کے سن لو، جس دن ہم نے کال دے دی تو تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے، پشاور کے لوگوں سنو، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے، میرے پیارے ججز، میری عدلیہ، میں نے آپ کی وجہ آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں ٹائم گزارا ہے، میں جیل گیا آپ کی وجہ سے، کیونکہ ہم ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن عدلیہ اس ملک میں کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، طاقتور کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ میں آج اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جب آپ نے عدالتیں لگائیں تو میں وہ پاکستانی ہوں جو 45 سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے، کبھی میں نے قانون توڑا؟ کبھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا کبھی کسی نے کہا کہ عمران خان میچ فکسنگ کرتا ہے؟ جب سے میں سیاست میں ہوں 25 سال، کبھی میں نے اپنے ملک کی اداروں کے خلاف، اپنی عدلیہ کے خلاف، کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بھڑکایا، کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائیں؟ اور میرے آنریبل ججز، مجھے آج جواب دیں آپ کہ ہمارا جو ہیرو، اور میں کہتا ہوں کہ 2 زبردست ہیرو نکلے ہیں اس گیم میں، ایک علی محمد جس نے تقریر کی اکیلے ہو کے، یہ مجھے علی محمد تمہارے پہ فخر ہوا،
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم میں دلیر لوگ ہوں، ایک اکیلا کھڑا ہو کے ان چوروں کا مقابلہ کرے. اور دوسرا ہیرو قاسم سوری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری. میں اپنے ججز سے پوچھتا ہوں کہ کیا قاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ جو مراسلہ اسے ملا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ صرف تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر آپ عمران خان کو ہٹاؤ گے نو کانفیڈنس موشن کے اندر؟ کیا اس میں لکھا ہوا نہیں تھا؟ اور کیا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو تو یہ جو شہباز شریف اچکن کڑا پہن کے انتظار کر رہا تھا، کہتے سب معاف کر دیا جائے گا؟ او امریکنو، ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. تم ہو کون یہ ہمیں معاف کرو گے؟ تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی، یہ شریفوں کی، یہ زرداریوں کی. جب 400 ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں ان کے دور میں 2008 سے 2018 میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے، نہ زرداری کے منہ سے ایک دفعہ آواز نکلی اور نہ وہ نواز شریف ڈرپوک بگوڑے کے منہ سے ایک آواز نکلی. کیونکہ یہ غلام ہے تمہارے، یہ پیسے کے غلام ہیں، ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. اور ان کو جو بھی سازش کے تحت، پاکستانیوں سنو، جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی، میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں، کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا نیوکلیئر پروگرام ان دو ڈاکوں کے ہاتھ میں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان ہماری سالمتی ان چوروں کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہو؟ کیا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ اور میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی، جب تک ہم الیکشن ان سے زبردستی نہیں کرواتے، ہم نے سڑکوں پہ ہونا ہے، ہم نے مظاہرے کرنے ہیں. ہفتے کو، اگلے ہفتے میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال، جس طرح آپ پچھلی اتوار کو نکلے تھے، ہفتے کو میں کراچی میں جلسہ کروں گا اور آپ نے ہر شہر میں نکلنا ہے جس طرح آپ نکلے تھے اتوار کو، ایک زندہ قوم کی طرح اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہر شہر میں آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے، ان غلاموں کے خلاف نکلنا ہے، ان امریکنوں کے غلاموں کے خلاف نکلنا ہے. میں آج اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا، یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ کیا ہم اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے. اگر ہم نے کامیاب ہونے دیا پاکستانیوں، ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی، ہمارے بچے معاف نہیں کریں گے. ہم وہ قوم ہیں، جب پاکستان بنا تھا پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह के कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा को हम नहीं मानते। और रसूल, हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, ये हमारा दावा है। और इसका मतलब कि हम या एक फर्द और या कौम, हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह में गैरत देता है। एक गरीब से गरीब आदमी भी जब गैरतमंद होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। मेरे नौजवानों, आज आपने मेरे से वादा करना है कि आपने जो आप जब दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, जब आप दावा करते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ना आप किसी के सामने झुकते हैं, ना किसी सुपर पावर के सामने झुकते हैं, ना आप झूठ के सामने झुकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह एक वादा है। एक आप अल्लाह से ओथ लेते हैं। और मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि ये वक्त आ गया है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर खड़े हों। जो भी मर्जी कहे कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम मकरूज हैं और गुलाम हैं। शहबाज शरीफ, तुम गुलाम हो, तुम एक करप्ट आदमी हो। तुम इस मुल्क के 40 अरब रुपए उसका तुमने जवाब देना है। जो आदमी करप्ट होता है वो हमेशा गुलामी करता है, वो हमेशा जूते पॉलिश करता है। चेरी ब्लॉसम, आपको तो शुरू से बूट पॉलिश करने की आदत पड़ी हुई है। आप तो पैसे के गुलाम हो। ये चक्कर मार रहे हो, कायदे आजम के मजार पे गए हो। शर्म करो। कहां कायदे आजम और कहां तुम्हारा सारा चोरों का टब्बर। और अगर ये नवाज शरीफ समझ रहा है कि ये अब NRO 2 लेके वापस आ जाएगा, पहले मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था, अब ये समझ रहा है कि इसको NRO 2 मिल जाएगा। नवाज शरीफ, किसी गलत फहमी में ना रहना। इमरान खान तुम्हारी इंतजार कर रहेगा। मैं और मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। तुम किसी गलत फहमी ना रहना कि वो सारा जो लंदन में अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, चोरी के पैसे पे, पहले चोरी की, मुशर्रफ ने जुर्म किया पाकिस्तान से इनको NRO देके, अब फिर तैयारी करके बैठा है सारा टब्बर कि फिर आएगा, फिर NRO लेगा, फिर लूटेगा, फिर पैसा चोरी करेगा, फिर पैसा बाहर लेके जाएगा। नवाज शरीफ, वो टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। और मेरे नौजवानों, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो। मैं आपके साथ अब सड़कों पे निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, तब तक निकलता रहूंगा जब तक तुम इलेक्शन हम तुम्हारे से जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। क्यों डर रहे हो इलेक्शन से? बताओ। हर रोज 3 साल से मैं सुनता था कि इमरान खान तो पब्लिक में जाएगा तो इसको अंडे पड़ेंगे। अब पता चलेगा कि अंडे पड़ेंगे किसको जब पब्लिक में आओगे आप। तो मैं सारों को
जितने भी तुम हो, चोरों का टोला, सब मिल जाओ। इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है, कोशिश इंसान करता है। इंशाअल्लाह तुम सब इकट्ठे हो जाओ। जब भी इलेक्शन होगा, अब जो पाकिस्तानी कौम तुम्हारे से करेगी, तुम हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। पाकिस्तानियों, मैं आज आखिर में एक बात करना चाहता हूं कि वो पेशावर पख्तूनख्वा वो लोग थे जिन्होंने जब मुशर्रफ पाकिस्तान की अमेरिका की जंग में लेके गया, सबसे ज्यादा कुर्बानी अब पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। 700 पुलिस वालों ने शहादतें दी पख्तूनख्वा के अंदर। कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। नकल मकानी करनी पड़ी, घर तबाह हो गए, ड्रोन अटैक्स हुआ। और जब मैंने कहा था कि मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरव्यू में, वो इसलिए नहीं, इसलिए मैं कभी अपनी कौम को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। जो भी मेरी फॉरेन पॉलिसी थी वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए थी। मैं किसी और के लिए अपनी कौम को कुर्बान नहीं करने के लिए तैयार। जब और मुझे कभी नहीं, मैं दो तीन आपको बातें बताऊं। यहां हमारी एक तरफ हम अब अमेरिका का, एक तरफ अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमें जलील कर रहे हैं। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया के रेमंड डेविस ने 2 पाकिस्तानियों को लाहौर शहर में कत्ल कर दिया। कोई नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं उसको पकड़ा, भेज दिया बाहर। सिहाला के अंदर 2011 में अमेरिकनों ने 26 पाकिस्तान के फौजियों को शहीद किया। जंग उनके लिए लड़ रहे हैं, हमारे फौजियों को वो मार रहे हैं। फौजी हमारे जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी, कितनी बेचारी उनकी औरतें बेवा हो गई। सिहाला में जब 26 मरे तो मैं एक कैप्टन के घर गया, उसकी बेवा को मिला। 20-22 साल की औरत, बच्चा उसने पकड़ा हुआ। कभी नहीं मुझे भूलता उसने मुझे क्या कहा। कहती, इमरान खान, मेरे दिल में जो गुस्सा है कि जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे उन्होंने मेरे खामद को शहीद किया। तो पाकिस्तानियों, मेरा ये वादा है कि कभी आगे से मैं अपनी कौम को, जब भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया इक्तदार में या अपोजिशन में, कभी मैं अपनी कौम को किसी और की जंग में शिरकत नहीं करने दूंगा, अपने लोगों को नहीं कुर्बान करने दूंगा। पाकिस्तानियों, आज से मैं ऐलान कर रहा हूं, हकीकी आजादी की जंग शुरू है आज से। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम निकलेंगे शहरों में, इमरान खान शहरों में निकलेगा, गलियों में निकलेगा। आपने मेरे साथ निकलना है। जब तक आप मेरे साथ निकलेंगे, हाथ खड़ा करके बताएं। इंशाअल्लाह मेरे सारे एमएनएस, एमपीज, सबको आज मैं कह रहा हूं, अपने अपने हलकों में जाओ, अपने लोगों को तैयार करो। वैसे आखिर में मैं जरा डीजल की बात करना चाहता हूं। डीजल साहब,
साल से तुम इस्लाम को बेच रहे हो, 30 साल से। लेकिन अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि उसने किसको एजाज दिया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, वो मेरी तरह के गुनाहगार इंसान को अल्लाह ने एजाज बख्शा। डीजल तुम्हें नहीं बख्शा, क्योंकि तुम बदनीयत हो, तुम इस्लाम को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हो। और मेरी कौम, मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि मैं फिर से कहता हूं, उमूमन प्राइम मिनिस्टर को जब निकालते हैं तो लोग मिठाइयां बांटते हैं, तो अल्लाह का तो खास शुक्र अदा करता हूं कि मेरी आवाम को अल्लाह तूने निकाला और मुझे इतनी इज्जत दी, तेरा शुक्र है। और मैं ये फख्र करता हूं कि मुझे निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इस्राइल में बनाई गई। इस्राइल बड़ा खुश हुआ, और वो आदमी जिसका नाम ग्रीट विल्डर है, ये सुन ले, ग्रीट विल्डर कोई कौन है, इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून, वो जो खाके बनाए थे, वो बड़ा खुश हुआ कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया। मेरा ये एजाज है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपको पता है कि आपका कप्तान आखिरी गेंद पे लड़ने वाला है, और मैं अब इनको मुकाबला करके दिखाऊंगा, इन चोरों को। और इनको मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं हुकूमत के अंदर वैसा नहीं, जितना खतरनाक हुकूमत के बाद तुम्हारे खिलाफ होऊंगा। पाकिस्तानियों, जो भी आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, अब आपने मेरी इंतजार करनी है। आपके शहरों में मैं आऊंगा, पब्लिक को मैं खड़ा करूंगा हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।